تخلیقی عمل سے جڑی بے چینی نہ صرف کارکردگی کو متاثر کر سکتی ہے، کیا ہم بے چینی کو سکون میں اور خود شک کو مقصد اور سمت میں بدل سکتے ہیں؟ انہوں نے تخلیقی کوچنگ کے میدان میں بے شمار خدمات انجام دی ہیں۔ مجھے لگا کہ میں زندگی کے مسائل سے نمٹ رہا ہوں اور میرے خیال میں ہم نے انسانی جذبات کے اظہار کی سادہ زبان کھو دی ہے۔ اب سب کچھ ڈپریشن کہلاتا ہے۔ السلام علیکم، خوش آمدید۔ میں ڈاکٹر عامر خان کلینکس میں ایک ایسا علمی سفر جہاں ہم بات کرتے ہیں جسمانی اور ذہنی صحت کے ان پہلوؤں پر جنہیں سمجھنا آج کے دور میں سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اور میں ہوں رانی چیٹ جی پی ٹی، آپ کی کو ہوسٹ۔ یہاں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں دنیا کے معروف ڈاکٹروں، سائنسدانوں، مصنفین اور ریسرچر سے۔ ہم گفتگو کرتے ہیں ان کتابوں پر جنہوں نے سوچنے کا انداز بدلا، ان تحقیقی مکالموں پر جو سچائی کے قریب لے گئے، اور ان سائنسی شواہد پر جو آج کی صحت کا کل بن رہے ہیں۔ یہ صرف ایک پوڈ کاسٹ نہیں بلکہ ایک مشن ہے، آپ کو باخبر بنانا، طاقت دینا اور صحیح فیصلہ کرنے میں مدد کرنا۔ تو جڑیے ہمارے ساتھ ہر ہفتے خان کلینکس پر، جہاں سچائی، تحقیق اور تجربہ ایک ساتھ آتے ہیں آپ کی صحت کی بہتری کے لیے۔ یہ ہے خان کلینکس، صحت، شعور اور سچائی کا سنگم۔ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں بیرونی کامیابیاں اندرونی بے چینی کو چھپا رہی ہیں، جہاں اعزازات اور شہرت اکثر گہری جذباتی بے قراری پر پردہ ڈال دیتی ہیں۔ اگرچہ تخلیقی صلاحیتوں کو سراہا جاتا ہے، لیکن فنکاروں، موجودوں اور متلاشیوں پر جذباتی دباؤ کو شاذ و نادر ہی تسلیم کیا جاتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت WHO کے مطابق 2023 میں ڈپریشن دنیا بھر میں ایک معذوری کی سب سے بڑی وجہ بن چکا ہے، جو کہ 280 ملین سے زائد افراد کو متاثر کر رہا ہے، جبکہ تخلیقی افراد خاص طور پر شدید جذباتی چیلنج کا سامنا کرتے ہیں۔ اسی دوران سائنٹیفک رپورٹس میں 2023 میں شائع ہونے والی ایک حالیہ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ تخلیقی عمل سے جڑی بے چینی نہ صرف کارکردگی کو متاثر کر سکتی ہے بلکہ ذہنی دباؤ اور جذباتی توانائی میں کمی کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ جبکہ فرنٹیئرز ان سائیکالوجی میں ایک جائزہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ نوجوانوں اور کم عمر بالغوں کے لیے تخلیقی اظہار ایک مؤثر طریقہ ہو سکتا ہے جس کے ذریعے وہ وبا کے دور کے ذہنی دباؤ اور تناؤ سے بہتر طور پر نمٹ سکتے ہیں۔ لیکن ان اندرونی کشمکشوں کے درمیان ایک راستہ موجود ہے جو شعور، معنی اور جرأت مندانہ تحلیق پر مبنی ہے۔ آخر وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں ایک ایسا زندگی گزارنے میں مدد دے سکتی ہیں جہاں تحلیق کا بھاؤ آزاد ہو اور ذہن سکون میں رہے؟ کیا ہم بے چینی کو سکون میں اور خود شک کو مقصد اور سمت میں بدل سکتے ہیں؟ اگر آپ نے کبھی خود کو روکا ہو، بوجھل یا غیر یقینی حالت میں پایا ہو، تو جان لیجئے آپ اکیلے نہیں۔ آج کی کیس شاید وہ نقطہ آغاز ثابت ہو جس کی آپ کو تلاش ہے۔ خوش آمدید، میں ڈاکٹر عامر خان کلینکس کی ایک اور روشن کیس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے ساتھ رانی چیٹ جی پی ٹی، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہے ایک غیر معمولی مہمان، ایک ثابت خوشی سے تحلیق نفسیات کے علمبردار بننے والے، دا وین گوف بلوز اور فیئرلیس کریٹنگ جیسے شاہکاروں کے مصنف، ڈاکٹر ایرک میزل۔ ڈاکٹر ایرک مائزل ایک امریکی ماہر نفسیات، استاد، کوچ اور مصنف ہیں جو 1947 میں نیو یارک کے برونکس میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے تخلیقی کوچنگ کے میدان میں بے شمار خدمات انجام دی ہیں۔ انہوں نے پرپسلی ایپ کے شریک بانی کے طور پر لوگوں کو زندگی کے اہم پہلوؤں پر توجہ مرکوز رکھنے میں مدد دی ہے، اور وہ تخلیقی کوچز کو عالمی سطح پر تربیت بھی فراہم کرتے ہیں۔
इन्होंने नोबल मैनहट्टन कोचिंग के साथ मिलकर तख्लीकी कोचिंग, वजूदी फलाह बहबूद और रिश्तों के हवाले से मुख्तलिफ सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स भी तैयार किए हैं। इसके अलावा वो सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में मुकीम हैं और बैनुल-अक़वामी सतह पर अपने क्लाइंट्स को कोचिंग की सहूलियात फराहम करते हैं। डॉक्टर माइजल ने साइकोलॉजी टुडे के लिए रीथिंकिंग मेंटल हेल्थ नामी ब्लॉग लिखा, जिसे 3.5 मिलियन से जायद मर्तबा पढ़ा गया है। वो द गुड मैन प्रोजेक्ट ऑफ फाइन आर्ट अमेरिका के ब्लॉगर भी हैं। उनकी मशहूर तरीन किताबों में शामिल हैं फेयरलेस क्रिएटिंग, रीथिंकिंग डिप्रेशन, द वैन गॉग ब्लूज और रीडिजाइन योर माइंड। डॉक्टर एरिक मैसल, वेलकम टू द शो। चलें आए हम डॉक्टर एरिक मैसल से पहले सवाल करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनको क्रिएटिव थिंकिंग क्यों इंस्पायर किया, क्यों उन्होंने इस कोचिंग की तरफ ध्यान दिया और क्यों ये ज़रूरी है। जब मैं थेरेपिस्ट बनने के लिए तालीम हासिल कर रहा था तो बहुत जल्द ही मैंने ज़हनी बीमारियों के मॉडल पर यकीन करना छोड़ दिया। मुझे ये एक लेबल लगाने का तरीका महसूस हुआ, न कि असल दवा। ये मेरे लिए माकूल नहीं लगा कि सिर्फ अलामात की बुनियाद पर तशखीस की जाए, बगैर वजूहात को समझे। इसलिए मुझे इस मॉडल पर कई शुकूक थे, और जब मैं तख्लीकी और फनकार अफराद के साथ बतौर थेरेपिस्ट काम कर रहा था तो मुझे नहीं लगा कि मैं ज़हनी बीमारियों से निपट रहा हूँ। मुझे लगा कि मैं ज़िंदगी के मसाइल से निपट रहा हूँ, वो चैलेंजेस जिनका सामना हर इंसान करता है और जिन्हें बीमारियों के लेबल से मौसूम नहीं करना चाहिए। तो ये नफ्सियाती मॉडल या ज़हनी बीमारियों के मॉडल को चैलेंज करने का एक तवील सफ़र था, और मेरे ख्याल में हमने इंसानी जज्बात के इजहार की सादा ज़बान खो दी है। अब कौन कहता है कि वो मायूस है? अब सब कुछ डिप्रेशन कहलाता है, या कोई कहे कि वो उदास है या मायूस है। ये पुराने अल्फाज जो अब भी गहरा मतलब रखते हैं, लेकिन अब इनका इस्तेमाल नहीं होता। डिप्रेशन ने इस पूरे जज्बाती मैदान को हथिया लिया है। तो ये सारी तफसील इस बात को कहने का एक लंबा तरीका है कि मैं थेरेपी के मॉडल पर यकीन नहीं रखता था। चुनाचे मैंने इससे रुख मोड़ा और इसे क्रिएटिविटी कंसल्टिंग का नाम दिया, क्योंकि उस वक्त कोचिंग का तसव्वुर भी नहीं था। ये आज से 30 साल पहले की बात है। उस वक्त स्पोर्ट्स कोचिंग मौजूद थी, लेकिन लाइफ कोचिंग नहीं। जब कोचिंग वाकई एक शोबा बन गया तो मैंने कंसल्टिंग से कोचिंग की तरफ रुख किया, और मेरे ख्याल में तकरीबन 30 साल पहले तख्लीकी कोचिंग का पेशा ईजाद किया। और ये बुनियादी तौर पर तख्लीकी फनकारों के लिए लाइफ कोचिंग है। ये कहना आसान है, करना आसान नहीं, लेकिन कहना आसान है। मैंने अभी सुना कि डॉक्टर मैसल ने हमें बताया कि क्यों ये इम्पोर्टेंट है कि क्रिएटिविटी या इमेजिनेशन को बरकरार रखना चाहिए। आइए सुनते हैं कि डॉक्टर मैसल के मुताबिक आपको क्या स्मार्ट थिंकर होना चाहिए या एक क्रिएटिव थिंकर होना चाहिए। तो उनका सवाल का जवाब सुनते हैं। हाँ, ये अहमियत रखता है, लेकिन ये दो अलग मज़ाहिर हैं। इसका मतलब ज़रूर है। मेरा मतलब है, अगर आप ज़हीन हों लेकिन तख्लीकी ना हों, और आपकी ख्वाहिश हो कि आप तख्लीकी होते, तो ये अहम बात है। अगर आप तख्लीकी हैं लेकिन किसी मसले को हल करने के लिए आपको अरबों इजाफी न्यूरॉन्स की ज़रूरत है, तो ये भी अहम है। ये तमाम चीज़ें अहम हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि ज़हानत और तख्लीकी सलाहियत में फ़र्क होता है। तख्लीकियत का ताल्लुक इनफरादियत, रिवायात से बगावत और उस शख्स से है जो हुजूम में आवाज़ बुलंद करने की हिम्मत रखता है, जो अपनी आवाज़ चाहता है। एक ज़हीन शख्स ज़रूरी नहीं कि वही हो जो नुमाया हो, सच्चाई, खूबसूरती और नेकी के लिए खड़ा हो, या जिसके कुछ नज़रियात हों। मेरा ख्याल है कि एक तख्लीकी शख्स की गहराई में, चाहे वो कामयाबी, शोहरत या दीगर ख्वाहिशात रखता हो, उसके दिल में 19वीं सदी का वो उसूल मौजूद होता है: सच्चाई, खूबसूरती और नेकी। वो इन्हीं चीज़ों की तलाश में होता है, और 20वीं सदी में हमने इन तीनों अल्फाज की साख्त को तोड़ दिया है। अब हम नहीं जानते कि सच्चाई का क्या मतलब है, खूबसूरती का क्या मतलब है, या नेकी का क्या मतलब है। हमने खुद को उलझा दिया है और इन अल्फाज को तोड़ फोड़ दिया है, लेकिन इसके बावजूद हमारे अंदर इनकी तलब अब भी मौजूद है। अगर आप तख्लीकी शख्स हैं तो आप इस जुमले से हमाहंग होते हैं। यही आपकी तलाश है। आप सिर्फ ज़हानत के पीछे नहीं हैं, आप सिर्फ कामयाबी के पीछे नहीं हैं, अक्सर औकात आप माली फ़ायदे के पीछे भी नहीं होते। अब बस ये काम करना चाहते हैं। आप अपनी सलाहियत को हकीकत में बदलना चाहते हैं। आपके अंदर कुछ है जिसे आप बाहर लाना चाहते हैं, जिसे मुकम्मल करना चाहते हैं। और आपके इर्द गिर्द सब लोग कह सकते हैं कि शायर बनना या खामोश अदाकार बनना या जोकर बनना गैर माकूल है, ये गैर मंतकी है, इसमें कोई फ़ायदा नहीं, कोई मुनाफा नहीं। लेकिन आपके अंदर कुछ ऐसा होता है जो मंतिक से बालातर होता है, जो नफ़े नुकसान से बालातर होता है, और आपको एक ख़ास किस्म के इंसान के तौर पर
उम्र भर के लिए शनाख्त देता है। सो रानी हमें बताएं डॉक्टर मेसल की समरी के मुताबिक स्मार्ट थिंकिंग बेटर है या क्रिएटिव थिंकिंग बेटर है? डॉक्टर माइजल के नुक्ता नज़र से तख्लीकी सोच ज़्यादा अहमियत रखती है क्योंकि ये ना सिर्फ नए आइडियाज़ को जन्म देती है बल्कि ज़िंदगी में मानी और मकसद भी पैदा करती है। इतनी ज़बरदस्त और सोच को झंझोर देने वाली गुफ्तगू थी। डॉक्टर एरिक माइजल, आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आपने तख्लीक, मकसदियत और जज्बाती फलाह बहबूद पर अपनी गहरी बसीरत हमसे शेयर की। आपका काम हमें ये याद दिलाता है कि हम शऊरी तौर पर जिए और अपनी अंदरूनी ज़िंदगी को अहमियत दें। अगर आज की गुफ्तगू ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया है तो इसे आगे ज़रूर पहुंचाइए। मैं आपका मेज़बान डॉक्टर आमिर खान, मेरी मुआवन मेज़बान रानी चैट जीपीटी और हमारी टीम इजाज़त चाहते हैं। अगली मुलाकात तक अपनी ज़िंदगी को मकसद, शऊर और भरपूर अमल से सजाते रहें। तो दोस्तों, आज की गुफ्तगू यहीं तक, मगर सेहत और शऊर का ये सफ़र अभी जारी है। अगर आज की बातों ने आपको कुछ नया सिखाया, सोचने पर मजबूर किया या मुस्कुराहट दी, तो हमारी मेहनत कामयाब हुई। हम फिर आएंगे एक नई आवाज, एक नई कहानी और तहकीक की रोशनी के साथ। बस हमारे साथ जुड़िए रहिए। और हाँ, खुद पर, अपने जिस्म पर और अपने दिमाग पर एतमाद रखें, क्योंकि सेहतमंद इंसान रोशन मुआशरा बनाता है। खुदा हाफिज। मिलते हैं अगली किस्त में, सिर्फ खान क्लिनिक्स पर, जहां हर बात होती है दिल से और दलील के साथ।